ठीक है, या कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इसके साथ, इस कार्बन के साथ लगा हुआ है, तो इट इज गोइंग टू बी मोर स्टेबल। ठीक है। और यस, विड्रॉइंग ग्रुप इंडक्टिवली, रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन एंड कॉन्जुगेशन, तीन तरीके से इस पर काम कर सकता है, और तीनों सिनारियों में इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। ठीक है। फॉर्मेशन कहाँ कहाँ से हो सकता है, तो अल्कीन से इसका फॉर्मेशन नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि अल्कीन इज नॉट अ गुड एसिड, इट्स द वीकेस्ट एसिड। ठीक है। देयरफॉर इट कैन नॉट प्रोड्यूस आर माइनस। अल्कीन से loss of H plus, that route is not possible again, because alkenes are also very weak acids. By addition of nucleophile, in general, addition of nucleophile is not feasible because this double bond repels the negative charge of nucleophile and prohibits its addition in general. However, if double bond has something in vicinity which is good withdrawing group, strongly withdrawing group, then this electron density will be shifted towards the withdrawing group, and this double bonded carbon can then get attached to, or will promote, or will like to get attached to the nucleophile, or can get attached to the nucleophile, forming a कार्बोanion. एंड दिस नेगेटिव चार्ज, अब इसमें बेसिकली NU जो होता है वो फार फ्रॉम ACWG अटैच होता है, सो दैट नेगेटिव चार्ज कम्स ऑन ACWG और क्लोजर टू ACWG विच कैन बी देन विड्रॉन। ठीक है। विड्रॉइंग ग्रुप्स यहाँ पर कुछ लिख रखे हैं, और कुछ रहते हैं जो आप लोग पहले इनकाउंटर कर चुके हैं, CF3 लाइक। ठीक है। ये सारे कॉन्जुगेशन से विड्रॉ करते हैं। Next thing is alkyne. Alkyne has slightly acidic H, and this slightly acidic H can be extracted with the help of strong bases like these: sodium amide, potassium amide, uh, alkyl lithium, Grignard reagent, copper lithium, alkyl copper lithium, alcoholic KOH, and other very strong bases. They are going to extract the H from this alkyne, and hence it can form a carbanion. The next thing is, from halides directly we cannot, I mean, this bond breakage is always going to produce a carbocation. However, when we treat this with metals like lithium or magnesium, this thing transformed into alkyl lithium or alkyl magnesium halide. This is known as Grignard reagent. This is known as Gilman's reagent. The reaction goes like this. Rx, this bond breaks. First of all, Li loses its electrons. Li plus extracts X minus from Rx. It forms LiX. R plus then accepts an electron to transform itself into free radical. Another Li gives another electron. This electron is then consumed by R dot, the free radical, to form R minus. This R minus then combines with the second Li to form RLi. Compounds like this, the lithium alkyl, lithium copper alkyl, that is Gilman's reagent, and Grignard reagent, they are one of the strongest base, whether organic or inorganic, सब में सबसे ज्यादा बेसिक कैरेक्टर इनके पास होता है. They can react with even very weak acids to form alkenes. These reactants can react with even the slightest of acidic things to produce alkane. For example, if they are going to be treated with something like water,
जिसका पीके इज क्लोज टू 16, वो भी, उनके साथ भी ये रिएक्ट करके अल्केन बना लेंगे, इवन अमोनिया के साथ रिएक्ट करके। नहीं, it's not only alkyl lithium. All of them are strongest base. Organometallic compound जो होते हैं, all of them are strongest bases. ठीक है, including alkyl lithium copper or lithium copper alkyl or Grignard reagent. All of them are strongest bases. Is that okay? हाँ सर। किसी भी वीक एसिड के साथ रिएक्ट करके ये हमेशा RH बनाएगा, यानी अल्केन का फॉर्मेशन करेगा। द एसिडिटी ऑर्डर मैंने लिखवाया था आप लोगों को ध्यान होगा तो, उसमें अमोनिया काफी नीचे था। ये इनफैक्ट अमोनिया जैसा वीक एसिड के साथ भी रिएक्ट करके अल्केन बनाता है। इज दैट ओके? इट इज दैट हाँ सर। स्ट्रॉन्गर बेस। अमोनिया का बट यहाँ पे कार्बन आयन कहाँ से आ रहा है वो मुझे नहीं समझ। कार्बन आयन यहाँ पे है, ये कार्बन आयन है। लिथियम कार्बन जो है, लिथियम अल्काइल जो है, या लिथियम कॉपर अल्काइल जो है, या लिथियम मैग्नीशियम हलाइड जो है, इन सब में मैंने बताया था इट स्टेज इन दिस फॉर्म। इट इज मोर ऑफ आयनिक देन कोवैलेंट। इज दैट ओके? हाँ सर। In all of these, R stays as R minus, and therefore in all these cases uh, it is a strong base because of negative charge on carbon. ठीक है, अब डायरेक्टली नहीं दिख रहा है तो हम बोल सकते हैं स्यूडो है। ठीक है, स्यूडो मान सकते हैं कार्बो अनायन इनको, बट ये स्यूडो नहीं होते, मोस्टली दे आर इंडिपेंडेंट। The moment you put them in any of the solvent, they are going to get free as R minus. Alcohol से we cannot generate carbon ions. Carbonyl से by extracting alpha hydrogen, we can definitely make carbon ions. We need to have some strong base in order to extract this H, and from there we can have a carbon ion which stabilizes itself by conjugation, by being in conjugation with C double bond O. कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव, कार्बोक्सिलिक एसिड जनरली नहीं बनाता है कार्बन आयन, कार्बामाइड नहीं बनाता है कार्बन आयन। ठीक है, बाकी ईस्टर, एनहाइड्राइड एंड हलाइड, they do make their carbon ions, respective carbon ions. हाँ सर। ठीक है, amines cannot form carbon ion. Next thing is alkane with a strong withdrawing group. कहीं पर भी strong withdrawing group हमने डाला तो we are going to have कहीं पर भी अगर strong base हमने डाला तो strong withdrawing group के presence में उसके बाजू वाले कार्बन से हाइड्रोजन निकल जाएगा। Negative charge जो build होएगा that will be stabilized with the help of a strong electron withdrawing group. So this can also easily form. अब ACWG जो है जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उतना बेटर बेस फॉर्म करेगा। इज दैट ओके? हाँ सर। ओके, नेक्स्ट थिंग इज वन, ये एक्टिव मेथिलीन
Hello. Yeah. Yes. Yeah, we do have. Where are you calling from? Yeah. Next to it, active methylene फॉर्मेशन के रिगार्डिंग दोनों तरफ से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स अगर लगे हुए हो तो दिस ग्रुप इज कॉल्ड एक्टिव मिथिलीन ग्रुप एंड एक्टिव मिथिलीन ग्रुप से एक्टिव मिथिलीन ग्रुप से H+ निकल करके इट फॉर्म्स कार्बन आयन post that we have reactions of so that is how the carbon ions get to form ठीक है post that we have like reactions of carbon ion ठीक है सो रिएक्शंस ऑफ कार्बन आयन में क्या क्या रहेगा अब एक बार जब मेरा कार्बन आयन बन गया ठीक है सो कार्बन आयन इज गोइंग टू लुक लाइक अ न्यूक्लियोफाइल एम आई राइट या Yes, sir. सो वी कैन कॉल दैट आई मीन एडिशन टू पहला वाला एस्पेक्ट अगर डिस्कस करते हैं एडिशन टू इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर ठीक है मतलब तो ये एडिशन ऑफ कार्बन आयन टू इलेक्ट्रोफाइल. हाँ obviously addition of electrophile is electrophile sorry addition of carbon ion and carbon ion itself is like a nucleophile carbon ion is a nucleophile right 2m deficient center ठीक है तो ये सारे कार्बन आयन्स कहाँ कहाँ ऐड हो सकते हैं विच आर द प्रोबेबल सेंटर्स जहां पर ये ऐड हो सकते हैं जहां जहां इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी रहेगी कहाँ इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी रहेगी आरएक्स में रहेगी आरओएच में रहेगी ठीक है आरओएच में थोड़ा मुश्किल रहेगा इनका ऐड होना बट आरएक्स में तो बहुत इजीली हो सकते हैं न्यूक्लियोफिलिक तो एडिशन बट हो सकता है कार्बन आयन ऐड होगा कैसे? कार्बन आयन ऐड होगा निगेटिव एंड से इनको पुश करेगा इसको बाहर निकालेगा कार्बन आयन पे कुछ ऐड नहीं होगा ऐसे? कार्बन आयन पे कुछ ऐड क्यों होगा वो एज अ न्यूक्लियोफाइल इन पे अटैक करेगा ना नहीं, और जैसे हम लोग कार्बोकटायन था तो ऐसे हाँ एक बड़े बड़े मॉलिक्यूल का पार्ट होता था, तो फिर कुछ राइट छोटा उसको अटैक करता था और स्टेबल करता था. हाँ तो अब उस पर क्या अटैक कराओगे निगेटिव पर क्या अटैक कराओगे पॉजिटिव को अटैक कराओगे राइट हाँ. तो हाँ. आरएक्स में आर अगर छोटा है जैसे मिथाइल है मिथाइल हैलाइड है हाँ. तो बड़ा चीज आप अज्यूम करो इस पर आकर के अटैक कर रहा है या छोटा चीज जा करके उसके साथ अटैच हो रहा है हाँ. समझा. ठीक है आरओएच में हो सकता है इसके बाद आर सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश में हो सकता है जो हमारा कार्बन आयन होगा दैट कैन कम एंड अटैक दिस सेंटर इस पर भी पॉसिबिलिटी है बट इस पे जनरली होता नहीं ठीक है क्योंकि OH डायरेक्टली अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं होता ठीक है इस सेंटर पे होता है प्लस आर सी डबल बॉन्ड OH आर सी डबल बॉन्ड O OR आर सी डबल बॉन्ड
X R C डबल बॉन्ड O NH2, इन सारे पे इसका एडिशन हो सकता है। ठीक है, मल्टीपल रीजन, आई मीन सब में रीजन यही है, यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव है, डेल्टा पॉजिटिव है, डेल्टा पॉजिटिव है, डेल्टा पॉजिटिव है। ठीक है, इसकी वजह से इनका एडिशन इन सारी चीजों पर पॉसिबल होता है और होता भी है। एम आई मेकिंग सेंस? हेलो। सर तो ये जो बोलिए। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, हाँ ओके, तो वो डेल्टा पॉजिटिव है। बेसिकली कहीं पर भी इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी दिखेगी वहां पर ये कूद के चले जाएंगे, एज सिंपल एज दिस। ठीक है। सर तो वो एक बार ये बताओ ना, वो OH में क्यों नहीं जाएगा वो एक बार। हाँ, ओएच में इसलिए नहीं जाता है, ओएच के साथ इनका रिएक्शन थोड़ा दूसरे तरह का होता है, ये इस वाले एच के साथ रिएक्ट कर जाता है। जनरली बीइंग अ स्ट्रॉन्ग बेस ये इसके साथ निकल जाता है। आना इसको यहाँ पे चाहिए था, अटैक करना चाहिए था, बट ये वाला हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक होता है और इसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होती है इस वाले बॉन्ड की। ठीक है, तो ये पूरी चीज नहीं निकल पाता है, रादर एच को लेकर के ये चला जाता है और अल्कीन का फॉर्मेशन कर देता है। बात समझ में आ रही है? तो दो नहीं। चीजें दो चीजें रिस्पॉन्सिबल है, एक सीओ बॉन्ड का स्ट्रांग होना और साथ में ओएच बॉन्ड का वीक होना या फिर एच का एसिडिक होना। ठीक है। तो अगर H एसिडिक है तो फिर आएगा ना पॉजिटिव सेंटर। पॉजिटिव सेंटर मतलब ये तो चला गया इसके साथ ना, कार्बन आयन तो खत्म हो गया, अब आगे आरओ माइनस बन गया ये। दिस इज नॉट अ प्रोडक्ट। हाँ, हाँ, इसका RO एडिशन माइनस किसी बनो। आरओ माइनस बन गया। वी डिडंट हैड एडिशन ऑफ सी माइनस ओवर सी प्लस। बेसिकली हाँ कोई ऑर्गेनिक आउटकम नहीं निकला है ना, मुझे तो सिर्फ एक अल्केन मिलके रह गया, कुछ प्रोडक्टिव चीज नहीं निकला। और ये रिएक्शन तो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं मतलब जस्ट अभी ऊपर बताया ना, एज वीक एज क्या बोलते हैं, वाटर या अल्कोहल, दे कैन रिएक्ट एंड फॉर्म अल्केन। कार्बन आयन इसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा का मतलब है मेरा इस आर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। ठीक है, एब्सोल्युटली रिएक्ट नहीं करेगा ऐसा नहीं है, इसके साथ रिएक्ट करेगा, इसके साथ रिएक्ट करता है, इससे एच एक्सट्रैक्ट करता है। सो एज अ होल अल्कोहल के साथ रिएक्ट करेगा ऐसा नहीं है, एज अ होल अल्कोहल के साथ डेफिनेटली रिएक्ट करता है। सी कार्बन आयन का मतलब बेसिकली ये हुआ, समझ लो मेरे पास मिथाइल कार्बन आयन है। ठीक है, मिथाइल एलाई है, अब इसको मैंने इथेनॉल के साथ रिएक्ट करा है। ठीक है, इथेनॉल के साथ ये रिएक्ट करके बना रहा है CH3H प्लस CH3CH2O माइनस। ठीक है, सेम अल्काइल लिथियम को अगर मैं भेजता हूं CH3CH2X के साथ रिएक्ट करने के लिए, तो इट फॉर्म्स प्रोपेन। इज दैट ओके? अब यूजफुल प्रोडक्ट ज्यादा कहां पर बना, देखने में लगेगा आपको कि यहाँ पर सर मीथेन बन तो गया। ठीक है, बट एक्चुअली ये CH3 माइनस Li जो है वो मीथेन से ही बनाया गया है, मीथेन से ही हम
प्रोसेस करके इसको बना के लेके आए। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? नहीं यस। समझ में आ रही होगी अभी। ठीक है, अभी के लिए थोड़ा सा साइड में रख दो। बेसिकली मेरा पॉइंट ये है, मेरा पॉइंट सिंपल सा है कि अगर मेरे पास कोई आर माइनस आता है, ठीक है, यानी कार्बन आयन आता है और कार्बन आयन को मैं रिएक्शन के लिए छोड़ता हूँ, तो वो यूजफुली मतलब नए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फॉर्मेशन में मेरे हेल्प करेगा। अगर आरएक्स होगा तो केटोन, अल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, या इनमें से कोई भी एक होगा तो इट विल हेल्प। इनफैक्ट कार्बन आयन ना इसमें भी हेल्प नहीं करता है। कार्बन आयन को हेल्प कराने के लिए, कार्बोक्सिलिक पे हेल्प कराने के लिए वी हैव टू डू सम चिटिंग वर्क। ठीक है, चिटिंग वर्क में बेसिकली हमको इस ग्रुप को डीएक्टिवेट करना होता है, या टेम्पररीली उसको एलिमिनेट करना होता है। तब जाके इसका ये एसिडिक हाइड्रोजन जो होता है वो एक्टिव होता है, या फिर वो इस पॉइंट पे एक्शन करने देता है। ठीक है, अदरवाइज ये वाला हाइड्रोजन जो है, ये वाला हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक होएगा और ये रिएक्ट कर जाता है इसके साथ। तो डायरेक्टली अगर मैं बोलूँ तो एसिड के साथ भी रिएक्शन नहीं करने देता है, इनके साथ करने देता है। इनमें इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, दीज कैन रिएक्ट डायरेक्ट, वी डोंट हैव एनी इश्यू इन दैट। इज दैट फाइन? सर फिर वो NH2 में भी प्रॉब्लम नहीं होगा? NH2 में प्रॉब्लम नहीं होगा। NH2 में ये वाला H निकलता है, निकलने की कोशिश करता है कॉन्जुगेशन वगैरह के, लेकिन ये वाला सेंटर भी एक्टिव होता है रिलेटिवली। इनफैक्ट इसके ऊपर ज्यादा डेल्टा पॉजिटिव रहता है। ठीक तो है, फिर सर इसको क्या हम लोग OH वाले को ऐसे लिखे कि नॉट पॉसिबल? OH वाले में आप ये लिखो कि R के ऊपर अटैक नॉट पॉसिबल। एंड सिमिलरली यहां पर इस सेगमेंट पर एक्टिव एडिशन नहीं होता है डायरेक्टली। इनके लिए प्रोबेबल सेंटर्स ये होते हैं, इनमें से किसी पर भी रिएक्शन हो सकता है। ठीक है, और ये एडिशन वाली केमिस्ट्री जो होती है ना, that also becomes very much it comes in conjonance with कटायनिक केमिस्ट्री, क्योंकि कटायन और अनायन जो होंगे वो साइमल्टेनियसली कंबाइन करेंगे। ठीक है, सो वो भी एक चीज होती है, वहां पर इसको सपोर्टिव कैरेक्टर इस पार्ट को मिल जाता है। अच्छा, एक जगह और ये काम करता है, एडिशन ऑफ कार्बन आयन से एलिमिनेशन। हाँ ठीक है, चलेगा। न्यूक्लियोफाइल को ऐड करा करके दूसरे न्यूक्लियोफाइल को ये करेंगे। ठीक है, इट इज गोइंग टू बी पार्ट ऑफ, मतलब ये एडिशन जो होता है, ये एडिशन के बाद एलिमिनेशन भी ये सारे स्पेशली ये देंगे और ये भी देता है। बट दैट इज गोइंग टू बी कोर्स ऑफ रिएक्शन विच विल वी विल स्टडी ड्यूरिंग मैकेनिज्म डिस्कशन। ठीक है, एडिशन ऑफ कार्बन आयन के बाद द सेकेंड वन इज एलिमिनेशन ऑफ अल्फा लूविंग ग्रुप। एलिमिनेशन
अल्फा। अच्छा एक मिनट, एक और चीज है इसमें, वो बता देता हूँ फिर हम लोग निकलते हैं। इन सब के साथ तो हम लोगों ने लिख लिया। और एक जनरल चीज लिख लो, रिएक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनो मेटालिक अच्छा अभी ये बंद हो जाएगा, सो प्लीज रीलॉग इन, फिर से ज्वाइन करें। ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड्स विद, ये किसके रिगार्डिंग है? मैंने उसके बाद मिस कर दिया। नहीं कुछ लोग नहीं वो मिस डिस्कस किए कर। हो, उसके बाद यही चीज बता रहा हाँ हाँ, हूँ। तो ये भी मुझे रि, लिखना है। हाँ, रिएक्शन ऑफ R minus with various ग्रुप्स। और R माइनस का सोर्स क्या है? सोर्स ऑफ R माइनस इज RMgx और RLi। और कार्बोनायन बेसिकली अगर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन से बन रहा है तो उससे तो ये, सॉरी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन से बन रहा है तो उसका कोर्स थोड़ा डिफरेंट ही रहेगा। दैट इज नॉट गोइंग टू बिहेव सो, क्योंकि वो कहीं बीच में बन रहा होगा तो किसी और चीज सिनारियो में बन रहा होगा, और आजू बाजू में कोई और होगा तो अकॉर्डिंगली वो रिएक्ट कर जाएगा। R माइनस प्लस R डैश सी डबल बॉन्ड ओ एच के साथ रिएक्ट करता है तो इट फॉर्म्स R सी एच R डैश O minus, gets proton and forms RCH R dash OH। R डैश से फिर ये रिएक्ट करेगा, R डैश सी डबल बॉन्ड O R माइनस के साथ R डबल डैश R सी। ठीक है, सी लुक, यहाँ पर देखो, अल्डिहाइड के साथ, फॉर्मल अल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करने पे ये 1 डिग्री अल्कोहल बना रहा है। एनी अदर अल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करने पे 2 डिग्री अल्कोहल बना रहा है, और केटोन के साथ रिएक्शन पे ये 3 डिग्री। 3 डिग्री, 3 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल बना रहा है। इज दैट ओके? फर्दर R माइनस may react with O double bond C double bond O to form R C double bond O O minus to finally form R C double bond O OH। Is that okay? uh, इसके बाद R minus may react with R C double bond OX to form
सॉरी ये आर डैश लिखते हैं, सॉरी। पहला रिएक्शन जो होता है वो जनरली इस एक्स को रिप्लेस करने के लिए, ठीक है। फिर अगर और ये एक्स्ट्रा हुआ तो वी मे हैव दिस थिंग हैपनिंग। आर वी गेटिंग दिस पॉइंट? सो बेसिकली और वो जो ओ एच आ रहा है, ओ माइनस, जिधर जिधर भी बन रहा है ओ एच, वो तो कहीं से भी आ रहा है ना ऐसे, कि क्या हम लोग क्या, उसको पानी में डाल रहे हैं। पानी में या कोई भी वीक एच डोनेटिंग ग्रुप अगर यहाँ पर है तो उससे ये पुल कर लेगा। जनरली पानी से ही आता है, रिफ्लक्स करते हैं, वाटर रिफ्लक्स करते हैं। रिफ्लक्सिंग टेक्निक होती है, पहले हम बाकी सारी चीजों के साथ रिएक्ट करा लेते हैं, फिर पानी फ्लश फ्लश कर देते हैं या फ्लैश कर देते हैं। इज इट ओके? हाँ सर, सर थोड़ा वो ऊपर जाऊँ ना अभी। सर एंड वो उसका मीनिंग क्या था, रिएक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स फॉलोज बिलो। हाँ, सी अगर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड आ रहा है अटैच करने होने के लिए या रिएक्ट करने के लिए, तो द organometallic compound is always going to react with aldehyde faster than, sorry, formaldehyde faster than this aldehyde, any other aldehyde, which in uh, which is going to be faster than a reaction on ketone, which is further going to be faster than reaction on this particular thing, that is acyl halide। और उसके साथ मतलब उससे वो ज्यादा फास्टर होगा ये एनहाइड्राइड से, और एनहाइड्राइड वाला ज्यादा फास्टर होगा ईस्टर के साथ रिएक्शन से। इज दैट ओके? सर उसका रीजन क्या है? हाँ रीजन है। रीजन ये होता है कि रिएक्शंस जो होते हैं किस टाइप के होंगे यहाँ पर। सो बेसिकली यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव सबसे ज्यादा होगा कंपेयर टू दिस वन, कंपेयर टू दिस वन। अब जब इनकी बात आती है, ये तीनों में ये ऑर्डर फॉलो होता है क्योंकि डेल्टा पॉजिटिव यहाँ पर सबसे कम है, यहाँ पर उससे ज्यादा है और यहाँ पर उससे ज्यादा है, ठीक है। इन तीनों केसेस में पहले जो रिएक्शन होता है दैट इज ऑलवेज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। पहले एक सेगमेंट बाहर निकलेगा, जैसे यहाँ पर हो रहा है, ठीक है, ये आया तो ये एक्स को रिप्लेस किया पहले, फिर उसके बाद इस डबल बॉन्ड ओ को ब्रेक करके यहाँ पर खुद ऐड हुआ और O माइनस से OH डेवलप हुआ। इज दैट ओके? दैट्स अ टू स्टेप प्रोसेस। तो चूंकि सब्स्टिट्यूशन होता है, सब्स्टिट्यूशन ऑलवेज एडिशन से स्लोअर रहता है। बात समझ में आ रही है? सर एक मिनट नीचे जाओ, वहां पे उसको वो कर भी क्यों रहा है वैसे? ऑफ मतलब एक बार कोर्स। वो बन रहा है, आर डैश सी डबल ओ आर बन गया ना, तो उसके हाँ, आगे वो क्यों कर रहे हैं? उसके आगे दूसरा R माइनस रहा अवेलेबल, तो फिर से वो आकर के इस पर अटैक करता है और इसको ओपन करता है। So the mechanism is going to be like this. This R minus will come and attack this. It is going to form
R dash C O minus X and R। अब फिर से ये इधर आता है और यहाँ पर ये दोनों बॉन्ड्स स्ट्रॉन्गर होते हैं, तो इट्स this incoming double bond forces this X to go out and it forms RC double bond O and R। फिर से R dash एक रहा, तो this will come over here and it will again form R dash C double bond। डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड बना लेता है, O माइनस R एंड R। फिर रिफ्लक्स होता है एंड दिस वन इज फॉर्म। इज दैट ओके? हाँ तो सर अब भी ऊपर जाना, अभी नोट कर रहा हूँ। नहीं अभी मेरा लेकिन खत्म नहीं। अच्छा ठीक है, पेज तो खत्म हो गया है ना। चलो नोट कर लो। ठीक है। अबे यार फिर ये बंद होगा। बंद होता है तो फिर से आप लोग ये कर। R minus can react with R dash C double bond O, O C double bond O, R dash to form R dash C double bond O R first. Then upon further reaction with R minus, it will form R dash C O minus R R, which will extract proton from solvent or somewhere else to form this। ठीक है। R dash, sorry R dash बोल रहा हूँ, R minus the carbon ion R dash C double bond O OR के साथ रिएक्ट करके R dash C double bond O R बनाएगा। फिर से R dash के साथ रिएक्ट करके O minus R and R बनाता है। फिर उसके बाद R dash COH R and R बनाता है। ठीक है, क्लियर है?
सो सो कंजम्पशन वाइज ये तीनों दो दो मोल करेंगे, ये तीनों दो दो मोल करेंगे, ठीक है, ये तीनों दो दो मोल करेंगे और ये दो तीनों एक एक मोल करेंगे। इज दैट ओके? ठीक है। अभी एक छोटा सा हाँ सर। क्वेश्चन, predict number of moles of RMGX required to completely react with 1 mole of following compound, ठीक है, and the compound underlined is this one, लिख रहा हूं मैं, I have this cyclodipentene substituted with one SH, one OH, one COH, one acetylene, one this thing, ठीक है। इसका एक मोल कितने RMGX के साथ रिएक्ट करेगा ये आपको बताना है। चलिए जल्दी से बताइए। हाँ सर, ये- वो 5 तो है बट किसी किसी में 2 भी होगा ना। हाँ, एक और हिडन ढूंढना है वैसे तो, ना है, ठीक है, जो कि एरोमेटिक होता है और इसकी एरोमेटिसिटी के वजह से ही ये हाइड्रोजन सिग्निफिकेंटली एसिडिक होता है। इनफैक्ट इट इज मोर एसिडिक देन एच ऑफ वाटर, ठीक है। ROH के एच से या H2O के एच से ज्यादा एसिडिक, थोड़ा ज्यादा एसिडिक ये होता है। बात समझ में आ रही है? हाँ। याद है ना? हाँ। एसिडिटी के टाइम में हमने डिस्कस किया था इस चीज को, एरोमेटिसिटी के टाइम में भी किया हो सकता है बट किया है आई थिंक। So this molecule is going to consume 6 moles of RMGX. Is that clear? यस। Now we will move into the second domain of this, that is elimination of, actually इस point को ना elimination of living group में सिर्फ लिखते हैं। Actually यहाँ पर दो courses होते हैं elimination में, so we are going to discuss both of them, ठीक है। elimination elimination of living group, ठीक है। लिविंग ग्रुप में दो तरह से निकलता है बेसिकली, एक तो होता है अल्फा कार्बन से लिविंग ग्रुप का डिटैचमेंट, एलिमिनेशन फ्रॉम, पानी, एलिमिनेशन
from हेलो। हाँ श्रेया। मैं आपको मतलब ना मंडे को ही बता दूंगा कि मतलब क्या है। ठीक है ना? हेलो। ओके। हाँ। हेलो। हेलो। हाँ। हाँ। कहाँ से? रिगार्डिंग? हम्म।
हेलो। हाँ सर। हाँ, यहाँ पे हमारे दो कोर्सेज हैं। पहला एलिमिनेशन ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन एलिमिनेशन फ्रॉम अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन मतलब जहां पर कार्बन आयन है उसी से लिविंग ग्रुप अटैच्ड होएगा। थोड़ी सी हिटिंग पर वो बेसिकली एलिमिनेट हो जाता है और इट फॉर्म्स कार्बीन। दिस कार्बीन इज एक्चुअली सिंगलेट कार्बीन। सिंगलेट का मतलब क्या होता है? एक ही ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं, पेयर्ड अप रहते हैं। जैसे CH3 माइनस से एक X माइनस निकल करके इट फॉर्म सिंगलेट कार्बीन। RCH2 माइनस से एक X निकल करके RCX सिंगलेट कार्बीन बनेगा। ये डाइजोनियम है, डाइजोनियम कार्बन आयन है, दिस इज डाइजोनियम। तो यहां से भी हमारा N2 एलिमिनेट होता है एंड वी फॉर्म सिंगलेट कार्बीन। सिमिलर थिंग इज हैपनिंग ओवर हियर। एलिमिनेशन, यहाँ से कार्बन मोनोऑक्साइड निकल रहा है, CO निकलता है एंड वी हैव फॉर्मेशन ऑफ सिंगलेट कार्बीन। एलिमिनेशन ऑफ बीटा कार्बन टू फॉर्म अल्कीन। L माइनस, यहाँ से L माइनस निकलता है तो यहाँ पर एक वैकेंट ऑर्बिटल जनरेट होता है जिसमें ये और निगेटिव चार्ज जो है स्पिल होकर के पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है एंड दिस फॉर्म्स अल्कीन। अच्छा, इस एलिमिनेशन में जनरली हमारे पास हॉफमैन प्रोडक्ट्स आते हैं। खैर, वो एलिमिनेशन में हम फिर से इस चीज को देखेंगे। यहाँ पर जो ग्रुप्स रहते हैं हमारे पास वो होते हैं NR3+। एलिमिनेशन में PR3+ भी हो सकता है, SR2+ रहता है, सॉरी PR3+, SR2+, X रहता है। ठीक है, इनमें से कोई भी अगर रहता है तो दिस इज गोइंग टू बी, आई मीन देयर इज गोइंग टू बी अ बीटा एलिमिनेशन व्हिच हैपेंस एंड दैट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ अल्कीन। ठीक है। अच्छा, ये एलिमिनेशंस जो है ये हम लोग इसको देखेंगे। दिस इज गोइंग टू बी देयर लाइक, sorry, elimination of beta carbon is also known as elimination from conjugate base। वो एक्चुअली एलिमिनेशन प्रोसेस के अंदर हम लोग देखेंगे। The last thing is rearrangement of carbon ion. The only reaction we have to discuss is Favorsky reaction. इसमें basically like this rearrangement can be demonstrated through reaction of this particular compound. इस compound का reaction with NaOH produces this particular thing. It's a carboxylic acid with reduced chain length। ठीक है, कैसे फॉर्म होता है समथिंग विच वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ। और आई एम सर गोइंग एक टू सेकंड वो पीछे करो। हाँ। हाँ होगा। ओके, सो
it happens like this. In presence of OH minus, the alpha hydrogen is extracted. It forms a negative charge over here plus H2O. सर NaOH के साथ कर रहे थे अपना। हाँ, NaOH का OH minus is extracting this H. फिर ये निगेटिव चार्ज जो है इसके ऊपर अटैक करता है और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराता है, फॉर्मिंग दिस टाइप ऑफ कंपाउंड। ठीक है, ये अटैक किया, Cl को हटाया, अब ये एक स्ट्रेन्ड रिंग बना और स्ट्रेन्ड रिंग के साथ साथ अब नेक्स्ट थिंग व्हाट हैपेंस इज ये फिर से एक OH माइनस आकर के इस सेंटर को अटैक करता है। ठीक है, इस अटैक की वजह से एक बॉन्ड जो है हमारा स्ट्रेन्ड रिंग का वो ब्रेक होता है एंड इट देन फॉर्म्स डबल बॉन्ड O एंड OH एंड ये ब्रेक हुआ। ठीक है, तो यहां पर एक निगेटिव चार्ज आएगा, ये निगेटिव चार्ज देन H2O से एक्सट्रैक्ट करेगा H को and it is going to form this compound. और सर वो थर्ड स्टेप में क्या किया? क्या? अच्छा, नहीं नहीं समझा। ठीक है, दिस इज द होल मैकेनिज्म और ये इकलौता रीअरेंजमेंट है जो हम लोगों को पढ़ना होता है इस लेवल पे। हेलो, इज दिस ओके? ये इकलौता कार्बन आयन और रीअरेंजमेंट है जिसको कि हम लोग को पढ़ना होता है। ओके, हाँ सर। नोट कर लिया? हाँ। ठीक है, नाउ वी कैन क्लोज दिस सेशन।